نامات دیکھ لیں، اس کی نام بھی دیکھ کے بیٹھے۔ چیف ایڈیٹر رہنما دکن کی خدمت میں حضرت وطن جو دکن کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، ان کی یاد میں اور ان کے نام سے منسوب حضرت وطن طریقت ایوارڈ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صرف جگر کا ایک شعر پڑھوں گا کہ وہ ادائے دل بری ہو، وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو وقار صاحب دلوں کو فتح کرنے والے ہیں اور وہ الحمدللہ فاتح زمانہ ہے۔ اب میں تقریب کی کاروائی قرۃ کلام پاک سے کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے مولانا قاری محمد منظور حسین صاحب خطیب و امام مسجد رحمت عالم سے میں خواہش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآنی سے تقریب کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ الذين يتقون لهم آپ تمام کا اس روحانی محفل میں آمد پر الوطن پبلیکیشن کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ تمام کا پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ محترم سید ظفار خان صاحب جن کا انتخاب اس ایوارڈ کے لیے عمل میں آیا ہے، اس سلسلے میں وارث حضرت وطن مولانا پیر سید شبلی نقشبندی صاحب قبلہ مکمل انداز میں اپنے خطاب میں فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج پروردگار عالم نے اپنے حبیب پاک حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے میں اس 1
اس بندے کا ذکر کرنے کے لیے موقع عطا کیا۔ اللہ کے حبیب نے، سرکار مدینہ نے کہ آپ اپنے اس امتی کا ذکر کرنے کے لیے مجھے موقع دیا، مجھے آپ شہنشاہ ولایت تاجدار بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میرا محی الدین پیران پیر کہ اس چاہنے والے کو جس کو منتخب کیا اس ذات کو آج میں مخاطب کر رہا ہوں۔ ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب اللہ کا بندہ موجود رہتا ہے، اگر غیر ضروری طور پر یا اس کی خوشنصیبی کے لیے تاریخ کے پل باندھ لیے جائیں تو احتیاط ضروری ہوتی ہے، لیکن جس شخصیت کے لیے میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ وہ سادات بنی ہاشم سید وقار الدین قادری قبلہ ان سارے چیزوں سے بے نیاز ہیں۔ وہ خود ہی نہیں جانتے کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، ارے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے آغوش میں ماں کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے تب سے مجھے پتا چلا کہ میری ماں، میری والدہ معظمہ کے ذریعے کہیں نہ کہیں سے کوئی رشتہ ہوتا ہے، لیکن ایسے رشتے تو دنیاوی اعتبار سے جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، ارے دنیا کے سارے رشتے اس دنیا کے جانے کے بعد کرکٹ کا میدان تھوڑا معروف ہوتا ہے، اس میدان کا عظیم کھلاڑی بننے والا جب رخ کرتا ہے سے آواز آتی ہے دکن کے حیدرآباد سے، مسلمان بے چین رخ کہتے ہیں آؤ وقار الدین ہم تمہارے منتظر ہیں، اور اللہ کا بندہ آتا ہے ان کو سب کو بلاتی ہے قافلے کو لے کے آ گیا۔ تو یہ بغداد کے قافلے سالار ماشاءاللہ کچھ عسکروں میں ماشاءاللہ یہ قافلے سالار رہے ہیں، بغداد کا ذکر ہے، سرکار بغداد کا ذکر ہے اور قافلے سالار رہے ہیں اور رہیں گے۔ تو میرے عزیزوں یہی کیفیت ہے اور یہی نسبت ہے کہ آج حضرت افتخار علی شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی ذات اس میں مبارک سے منسوب حضرت وطن تاریخ اوارڈ آپ کو پیش کرنے کی ہم سب سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یاد رکھنا ہم سب کی ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے، تو سلامت رہے، تیرا آشیانہ قادری آباد رہے۔ تیری ایک سلامتی میں سینکڑوں یتیموں کی سلامتی ہے، تیری ایک سلامتی میں غربا و مساکین کی سلامتی ہے، تیری ایک سلامتی میں ملت اسلامیہ کی آبرو کی سلامتی ہے، تیری ایک سلامتی میں خانواد قادریہ کی سلامتی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے محترم سید وقار الدین صاحب نزل اللہ علی کا شکر گزار ذاتی طور پر، اور پھر جو آواز ان گناہگار کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں خود میرے حضرت وقار الدین صاحب کے مقدر پہ ناز کرتا ہوں۔ ہاں بالکل بیٹھ کے لے بابا
परेश भाई थोड़ा आगे आ जाओ, इधर आ जाए, आगे आ जाए। आइए बदलो से जब मुझसे हाथ करो हाँ एक सेकंड ले आप ले लीजिए परवेश भाई आ जाओ। सजाद नशीन हज़रत मूसा क़ादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह से मैं ख्वाहिश करूँगा बिल्कुल आइए चलिए क्या यार सब सिलसिले की पूरे अब उसके बाद मेरे उस्मान बिस्मिल्लाह मौलाना शाह मोहम्मद उस्मान सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत पीर गैब रहमतुल्लाह अलैह परगी वो यहाँ पर आए और मैं फिर के शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा करूँ। मुझे बड़ी खुशी है ये दखन के एक अहम थोड़ा मैं खरीफ भाई ले लो आजा आजा नहीं भाई आवाज नहीं हमारे अखबार की पॉलिसी रोज अव्वल से बड़ों से लेके आज तक मसलक में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं की, न सियासी मामला में कभी कॉम्प्रोमाइज की, भारी कीमत अदा की। अखबार बंद हो गया, बड़े लोग जेल में गए, बर्फ की चिलों में लिटाए गए, मगर हम अपने मसलक से अपने उससे नहीं हटे और ना इंशाल्लाह हटेंगे। और आज भी सियासी हालत तो ऐसे जा रहे हैं जिसमें हमको साबित कदम रहना पड़ेगा। इसलिए हमने ये सोचा कि मुसलमानों को मुत्तहद कैसा कर सकते हैं। एक ही इशू ऐसा है जिस पे कोई मुसलमान को इख्तिलाफ नहीं हो सकता, वो है क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस। मैं जब से अलीगढ़ से वापस आया हूँ, जंग हुई, इसराइल ने कब्जा कर लिया बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा, वो तारीख और आर्शी तारीख है उसकी बाजियाबी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। नियुक्त किया गया और मैं जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ भी मुक़द्दस जलसे हो रहे हैं फ़लस्तीन के बारे में, हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और जलसों में लोग बहुत कम आने लगे हैं। ये एक जलसा ऐसा है, इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि मेरी सारी कोशिश की कि मुसलमानों तक से काम लिया। ये सब हज़रत रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ये सब दीन के काम में जुड़ गए थे। आज आप जो नजर आ रहे हैं ये सब ये बुजुर्गान दीन की वजह से। अब वक्त की ज़रूरत है कि इस काम को आगे बढ़ाएं। मैंने 26 नजरबंदी साहब से कहा कि आप आगे बढ़ाइए। मैं तो तय कर लिया हूँ कि अब जो भी काम करना है वक्त की ज़रूरत की है। मैं अपनी आबाई जायदाद जो करोड़ों में है अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख के पूरा दीनी काम में लगा दूँगा। जायदाद से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, दौलत से। दुआ फरमाइए कि ये काम में आप हम सब मिल के काम करें। और आज वक्त की ज़रूरत है कि हमको मसलक से हटाया जा रहा है और मसलक से हटाने में बैरूनी मुल्क के ममालिक भी शामिल है। उनकी वजह से नए नए फितने पैदा हो रहे हैं, इसलिए इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। ये प्लेटफॉर्म बनाइए आपके हमारे हम ख्याल हम अकीदा लोगों का। ये 26 नजरबंदी साहब से मैंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म तो यहाँ से बन चुका, यहाँ से काम कीजिए। और मैं जहाँ जा रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि मसले के मामले में आप एहतियात से काम लीजिए और ये मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। और आज वक्त की ज़रूरत है और आप हमको ये गौर करना है कि कैसे हम अपनी हालत अच्छी करें, क्योंकि तेज़ी के साथ अपने भाई बहन भटकते जा रहे हैं, माहौल बदलते जा रहा है। इसकी वजह यह है कि दौलत की तक़सीम और इस किस्म के मामला देने की वजह से ये चीज़ होती जा रही है। इसलिए ज़रूरी है, मैंने ये तय किया है कि हैदराबाद को एक बहुत बड़ा मरकज़ बनाऊँ दीन का। इंडो अरब कल्चरल सेंटर बनने जा रहा है। ये एशिया का पहला है और 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। आप हमारे को किसी चीज़ की फिक्र की ज़रूरत नहीं है। आप कोई जलसा करीजिए या किसी को बुलाइए, हम बुलाने तैयार हैं।
रखने तैयार है, खिलाने तैयार है, पिलाने तैयार है। तो ऐसे कई प्रोग्राम हमारे होंगे जिसका अंदाजा नहीं है। आप लोगों से दरख्वास्त है कभी पंचायत में आके देखिए क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तो बन रही है जिसमें 2000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं करीब, और इस्लामिक रिसर्च सेंटर बन रहा है, वेस्टेज रिसर्च सेंटर, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, ये सब बन रहा है। मैं एक ऐसा मरकज़ बना रहा हूँ आपके हमारे लिए कि जैसे आलिम इस्लाम से जोड़ दूँ, और मेरे ताल्लुक़ात भी माशाअल्लाह अल्लाह के फजल से कई अरब ममालिक से बहुत ही करीबी और अच्छे हैं, और मुझे भाई बन के बुलाते हैं, नाम से नहीं बुलाते, अरब एम्बेसडर। और इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहता हूँ कि ऐसे काम करूँ जिससे हिंदुस्तान के लोगों को फ़ायदा हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों को फ़ायदा हो। और मुझे खुशी है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस तरीक़त का अवार्ड मेरे को मेरे शबीर रमज़ानी साहब का मशकूर हूँ। मेरे इनकार के बाद इतनी ज़बरदस्ती मुझे ला के यहाँ बिठा दिए। मुझे पसंद ही ये जलसे वाला काम का ये अवार्ड बहुत मिले। कई बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुका हूँ मैं जितने कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूँ शायद हिंदुस्तान में कोई कर रहा होगा, और मेरे मिशन जारी रहेगा। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग हिंदू अरब के प्रोग्रामों में हिस्सा लेते रहे। आपको जान के खुशी होगी कि सदर फ़लस्तीन महमूद अब्बास साहब नवंबर में इंशाअल्लाह हैदराबाद तशरीफ लाएंगे। आप लोग सब मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं। फ़लस्तीन पे कॉन्फ्रेंस होने जा रही है बहुत बड़ी, जिसमें इंसान लोग गुंडागर्दी करते हैं, इस्लाम के नाम पर काम करते हैं। तो ये ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम के बारे में जो सहमियत आ रही है उसको दूर करने का काम करें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस मुक़द्दस जलसे में शिरकत के लिए आए, और कुछ बातें बहुत सारे लोगों ने अच्छी की, ये बातें आवाम तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कि मोहतरम सैयद विक़ारुद्दीन साहब क़ादरी मुदीर आला रहनुमाए दखन ने की खिदमत में आज हज़रत सैयदना इफ्तिखार अली शाह वतन अलैहि रहमा से के नाम से मौसूम हज़रत वतन तरीक़त अवार्ड पेश किया गया। और ये हकीकत है कि ये अवार्ड के पेश करने में एक अहम पहलू ये है कि आज हिंदुस्तान में औलिया अल्लाह के तालीमात को, और ख़ास तौर पर सलासिल चिश्तिया, क़ादरिया, नक्शबंदिया, रिफ़ाइया, सोहरवर्दिया को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना ज़रूरी है। और रहनुमाए दखन ने 1921 से 96 से साल तकरीबन 100 साल से यह खिदमत अंजाम देते आ रहा है। और अभी विक़ारुद्दीन साहब ने ऐसा फरमाया, इंशाअल्लाह ताला हम वो बहुत दूर नहीं है कि एक आलमी तरीक़त कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह हैदराबाद में मुनक़्क़िद होगी, और तमाम सिलसिले के बुज़ुर्गों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मोहतरम विक़ारुद्दीन साहब की सरपरस्ती इस मुक़द्दस काम के लिए रहेगी। और हज़रत सरकार वतन का जो निस्बत है, और विक़ारुद्दीन साहब ने जैसा इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह आज दुनिया को इसकी शदीद ज़रूरत है। आज मसलक में ऊपर उठकर अल्लाह के बंदों को अल्लाह का कलाम सुनाकर अल्लाह के महबूबों का पैगाम पहुँचाने से ही ये खानक़ाहें, ये दरगाहें, ये मरकज़ हैं इत्तेहाद जहती के। ये मरकज़ हैं उस जगह के जहाँ हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, और माशाअल्लाह हिंदू भी आते हैं। यहाँ पर किसी का भेदभाव नहीं है। हिंदुस्तान की धरती पर आज जब इस्लाम को और इस्लाम के ख़िलाफ़ मुसलमानों को दहशतगर्दी का नाम दिया जाता है, ऐसे में सूफिया इकराम का पैगाम इन लोगों के लिए एक अजीम पैगाम है। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि मोहतरम विक़ारुद्दीन साहब ने ऐसा फरमाया, हम ज़रूर जो है ये हज़रत वतन अवार्ड के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे और सूफिया के पैगाम को पहुँचाएँगे। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी वफ़ा करे तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आलमी तरीक़त कॉन्फ्रेंस हैदराबाद दक्कन में मुनक़्क़िद होगी। हम तमाम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपके ज़रिए से भी, ये मीडिया के ज़रिए से भी अल्लाह के बंदों को ये बहुत ही सूफिया का पैगाम पहुँचेगा। और मैं इस तरह से हम आपके लिए कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जो पैगाम पहुँचा रहे हैं उसके लिए हम आपके लिए दुआ गो हैं। ये फ़कीरज़ादा
آپ لوگوں کی دعا کرتا ہے اللہ آپ کے زور قلم اور زیادہ فرمائے اور یہ پیغام کو جہاں تک پہنچا سکے پہنچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں آخری مرتبہ پھر وقار الدین صاحب کا یہ دعا کرتا ہوں کہ تو سلامت رہے، تیرا آشیانہ قادری آباد رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.